so much, beautiful Kanaya. Lead us from darkness to light. This divine flame represents the knowledge that our teachers have bestowed upon us. As they light the lamp, may it ignite the spark of wisdom and knowledge in each one of us. धन्यवाद आदरणीय शिक्षकगण। अब हम इस ज्ञान के प्रकाश से पूरे सभागार को आलोकित होते हुए देखेंगे। And now it's time for the first performance of the evening. It is the classical performance. We are now going to embark through the heart of classical music. So sit back, relax, and let the music transport you to another universe. I now invite Mr. Soham Biswas for the classical performance of the night.
of you, and very warm welcome to all Archaites. So I hope there is a special day today. Do you know what it is? No? Sunday is fine. Other than that, it is International Literacy Day. So when you say literacy, so it has two parts. One is what your teachers have taught you and what you have learned by yourself. So both the teachers are the ones who are teaching you, and also a teacher is within yourself. So let's celebrate both of them together, and I am sure that you believe and you also understand that it is not only that teachers who teach, it's also learning by self. So you are teacher to yourself. So let's celebrate it, and I welcome all of you. I am sure you are going to enjoy the evening as promised to me by the Hall HP and SSN. And all the HCM members, I am sure they are going to do it. So, I would also say that please enjoy the moment, please enjoy the event, and make sure that it remains as memories for the year to come. And we are going to celebrate it for the next year. Thank you. I hope everyone is doing great. Good evening, everyone. Today, as the Hall President of Radha Krishnan Hall of Residence, I extend my wholehearted welcome to all my gurus and my fellow students who have gathered over here for the RK Sokal night. Here are a few lines from my side for all my gurus. मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया. Am I audible, everyone? मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया. मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया. लक्ष्य भेद का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को मेरा शत शत प्रणाम. उस गुरु को मेरा शत शत प्रणाम. Our teachers are the first ones to sow the seeds of righteousness into us and prepare us to face the challenges that come our way. Today is a special day for them, as we thank them for the invaluable contribution that they have made to our lives. Radha Krishnan Hall of Residence is named after Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. His work in Indian philosophy and education has left an indelible mark on India and the world. Today, we are here to celebrate his 136th birth anniversary by displaying amazing performances put together by the boarders of Radha Krishnan Hall of Residence. So without any further ado, let's move ahead into our Sokal night. I hope all of you have a cheerful evening and go back with a smile on your face and a lot of memories to cherish forever. RK ka tempo! RK ka tempo! RK ka tempo! You RK! मनाने के लिए जिस दिन हम उन सुपर हीरोज को धन्यवाद करेंगे जो बिना मास्क बिना कैप पहने रोज हमारी क्लास में आते हैं. हमारे प्यारे टीचर्स, ये लोग वही हैं जो ना सिर्फ हमें पढ़ाते हैं बल्कि हमारे फेल होने के डर को उम्मीद की किरण भी दिखाते हैं. तो आज का दिन इन्हें डेडिकेट करते हैं जो ना सिर्फ हमें पढ़ाते हैं बल्कि हंसाते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं. मैं आज सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि यहाँ बैठे हर एक की कहानी है. तो इसकी शुरुआत कुछ यूं हुई. कंधे पे बोतल गले में बस कंधे पे बस्ता गले में बोतल, शुरू हुआ जीवन का नया सफर. माँ के आंचल से निकला मैं, अब मैडम के पास था मेरा ठहर. माँ की ममता से भरा था दिल,
मैडम में भी वही प्यार पाया। उनकी गोद में मिली दूसरी माँ, उनकी छाव में खुद को बेहतर बनाया। अब स्कूल जाना शुरू में किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी कुछ ही दिनों में सोचने लगा था कि क्यों ना मैं घर पे ही पढ़ लूँ। लेकिन मम्मी पापा ने जबरदस्ती स्कूल भेजा और तब से लेकर आज तक का सफर वाकई एक शानदार कहानी है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार स्कूल बस में बैठा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं बस रोया ही नहीं था, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। जैसे ही बस चली लगा कि किसी अनजान सफर पर निकल पड़ा हूं। तब समझ आया कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि हिम्मत और साहस की भी शुरुआत है। शुरुआत में स्कूल का वो डर, जब पहली बार क्लास में घुस रहा था तो लगा कि कोई हॉरर मूवी देखने आया हूं। सर की आंखों में ऐसी चमक थी कि मेरे मन से आवाज आई, बेटा तू भाग ले। सर का पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही खास था। उनकी हर बात में एक ऐसा अनुशासन था कि हम अपनी सांसें भी गिन के लेते थे। एक बार उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा और मेरे दिमाग में सारे जवाब दौड़ने लगे, लेकिन मुंह से सिर्फ एक निकला, सर वो मैं। गुरुजी की डांट में छिपा था प्यार। उनकी नजरों में था हमारे भविष्य का ख्याल। हर सवाल का जवाब उनके पास होता था, लेकिन हमें तो उनसे सवाल करने का भी डर होता। अब डर का माहौल तब तक था जब तक क्लास में सर थे, क्योंकि इसके बाद हमारी क्लास में आई मैडम। अब मैडम का आना मतलब क्लास के माहौल का एकदम से बदल जाना। जहां सर की क्लास में हमेशा हमें चिंता रहती थी कि जवाब देने की चिंता रहती थी, लेकिन मैडम की क्लास में सब कुछ सुकून भरा और सुंदर हो जाता था। उनकी हंसी इतनी प्यारी थी कि उनकी मुस्कान देख के क्लास में सभी बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। सच कहूं तो मैडम की हर बात पे ध्यान देता था, लेकिन उनकी बातों से ज्यादा उनकी हंसी पे ध्यान देता था। एक बार उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या मैं सही समझा रही हूँ? और मेरे मुंह से निकला, मैडम आप जो भी समझाती हैं सही लगता है। मैडम की मुस्कान थी हमारी राहत। क्लास में उनकी बातें मीठी सी चाहत। पर जब घर पर उनकी तारीफ कर दी, माँ ने कहा पढ़ाई पे ध्यान दे, ये क्या बकवास है। अब इसी तरह प्यार और मार का व्यवहार सहते सहते हम बड़े हुए और एक ऐसी जगह आए जहाँ आने का तो बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आ पाते हैं। IIT। अब यहाँ आए तो बहुत से प्रोफेसर्स मिले। कुछ बहुत अच्छे थे और कुछ थोड़े गुस्से वाले भी थे, लेकिन सब में एक बात कॉमन थी कि सब खुद के लिए कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन हमें एक बेहतर इंजीनियर बनाना चाहते थे। मुझे क्लास में लेट आने पर डांटने वाले आप थे और ना आने पर डी रजिस्टर की धमकी देने वाले भी आप थे। मुझे एक्स्ट्रा असाइनमेंट देने वाले आप थे और टेस्ट मिस करने पर मेरा झूठा मेडिकल एक्सेप्ट करने वाले भी आप थे। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। रोशनी बनकर आए जो मेरी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुंचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे शिक्षक को मैं दिल से सलाम करता हूँ। Achieving big for a better lifestyle, to make a name for themselves, and of course, to flex their hard-earned royalty. IITians, being the most intelligent people in the country, are expected to be the torchbearers and leaders in science and technology. But I guess no one cross-checked with us, huh? Because when I arrived on campus, I expected to see a buzz of scientific innovations.
But instead of thinking of innovating something new and useful, I have found that most of the students were obsessed with money. भाई तुझे पता है क्या? CTC और in-hand अलग होता है. People seem to know more about the packages that the companies offer instead of the work they require you to do. But once in a while, there steps upon this institute a student, a visionary, and out of the race rat. I wouldn't write such praise for anyone if the subject wasn't myself. I joined this institute for an impact, to make an identity of my own, to leave behind a legacy that inspires thousands and impacts millions. Well, these daydreams are fine for any teenager, as long as they are just dreams without action. But the moment you start to actually work on it, well, let's just say things turn ugly. There is a constant tug of war in your mind between what's better and what's easy. You lose your sleep, your temper, your routine, and most importantly, your peace of mind. You will lose the sense of emotions, and you will constantly search for meaning in everything, and you will find none. These out-of-the-race dreams start as noble aspirations, something that gives meaning to your life, but they end up as a nuisance that you want to get rid of. Well, some people in the audience might disagree with me. And so does Mr. APJ Abdul Kalam. In his famous quote, he says, "A dream is not that which you see while sleeping, it is something that does not let you sleep." I can't but reluctantly agree. Primarily because an aspiration with enough commitment and a sense of urgency is your ticket to a mental asylum if it lacks prior, healthy, and relevant knowledge. Do you guys agree? Well, without knowledge, or in KGP lingo, what we call funding, you will never achieve your desired goal. You need to have a certain idea of what you want to do. But more importantly, you need to know how to get there. My fellow students will agree that we have all struggled on that part. On a late night, sitting in my department library, pulling my hair out and shouting, "Why can't I figure it out? How do I do it? What nonsense is this? Have I made a mistake coming here? Am I at the wrong place?" It took me a whole year to realize what I lacked. A guru. सालो बाहर आ अरे कौन भाग रहा सर? तुम लोग? हम लोग? हाँ तुम लोग। हाँ माफ कीजिएगा, भूल गए थे। हम सचमुच भाग ही रहे थे, आपसे डरते। हाँ साहब, बहुत तेज भाग रहे थे, दिखिए साथ में बोलने लगे साहब। चोर पुलिस से तेज भाग ही नहीं सकते। अबे सब पकड़ लिया। क्या तुम लोग
साहब ये सोचते हैं कि क्या करें। हम बहुत से खतरनाक काम करते हैं साहब, जो हम आपको कभी नहीं बताएंगे साहब। नहीं बताओगे? सालो हमारा अपना चढ़ोगे? प्लीज सर, देखिए कभी हालत। अरे सर, आप की तरह खूबसूरत नहीं होगी। बातचीत बातचीत हम क्या है तुम लोगों का? नाम पूछ रहा हो कमीनो? हाँ हाँ, यही नाम हमारा। लोग तो इसी नाम से जानते हैं, कमीने। ए नाम पूछ रहा हो? साहब हवाला दे चलिए ना, वहाँ पूछिएगा। हाँ साहब, हाँ आप भी फ्री होंगे और हम भी। बे नाम बताओ। सर दरोगा सिंह का नाम वर्सोवा। कलेक्टर सिंह था ना परसों। कर्नल सिंह था ना। वर्सोवा? तुम तीनों मेरे इलाका के आकर और ये हरकत? अरे सर, हम लोग बहुत खराब आदमी है, मारिए पीटिए हम लोग को सर। हवाला ले चलिए। प्लीज साहब हवाला दे चलिए ना। तुम लोग भागे क्यों थे? सच सच बताइए साहब। बको। साहब मैंने किसी का जेब काटा, फिर सीटी बजी और मुझे भागना पड़ा। सर मैंने हत्या की है साहब, लास्ट की उंगली से अंगूठी उतारी था कि आपको सीटी बजी, भागना पड़ा। अरे साहब मैं तो नक्सलवादी हूँ, मैं बहुत लगा नहीं वाला था कि आपकी सीटी बजी। सच बोल। साहब साहब मैं पर्स दिखा सकता हूँ। साहब मैं अंगूठी दिखा सकता हूँ। साहब मैं तो बहुत दिखा सकता हूँ। अरे साहब हम ना आपको अपने आप को चोर साबित करने का पूरा मौका देंगे सर। ठीक है। साहब एक बात बताओ, अब बहुत ही नेक आदमी हो साहब, वैसे भी हमें हवाला लेके ही जाने वाले हैं ना। आपका ऐसे हम कभी नहीं भूलेंगे। इस जमाने में इतना कौन करता है भला। पर वैसे भी हमने एक से घटिया ऑफिसर्स देखे हैं सर। वही ना, एक दो डंडा मार के छोड़ दे साले। जेल ले जाने में तुमकी मां मर जाती है। तुम क्या कहते हो? हम चोर होते हैं, हम रिश्वतखोर होते हैं, हम मक्कार होते हैं। नहीं साहब, मैं नहीं करती हूँ साहब। तू इधर आ। एक पुलिस वाला नेक आदमी कैसे हो सकता है? एक नेक आदमी पुलिस वाला कैसे होता है? आप तुम्हें ना घुमा के क्यों की? घुमा फिरा कर कहना दर्शक से पूछ। ओए इधर जा रहा है? से बात कर रहे हो? अरे दूर दूर तक कोई नहीं है, इतनी ठंड में इसे पूछेगा? अरे इतने सारे चेहरे हैं, इतनी सारी कुड़ियां हैं, कोई तो समझेगा भला। हे, दर्शकों को अभी स्टेज पे बुलाया क्या? इधर आओ। सबूत दिखाओ। साहब आप अपने जेब को चेक कीजिए ना, उसमें आपके बस है क्या? हाँ है। साहब वो नीला कलर का होगा। साहब मैंने किसी का जेब काटा, फिर सीटी बजी और मैंने उसे फेंक दिया साहब, और आपने उसे ले लिया साहब। ओए ये मेरा पर्स है। साहब सारा देश के पर्स आपके है ना, उसे खोल के देखे ना, उसमें ना ही आपके नाम का कुछ कार्ड होगा या ना ही आपकी बीवी की फोटो। साहब यही मेरी जेब काटे का निशानी है साहब। तू बैठ इधर, तू बैठ। तेरा क्या है? मेरा मेरा मेरी अंगूठी साहब, मेरी वो अंगूठी आज जो आपने पहनी है वही हीरे की अंगूठी है जो मैं लास्ट से चुराने वाला था। आपकी सीटी बज गई तो भागना पड़ा। बहुत गलत बात। ये अंगूठी मुझे मेरी ससुराल से मिली है। अरे सारा देश आपको ससुराल से मिला है। तू इधर बैठ। तेरा क्या है? साहब मेरा मामला पुलिस लाइन में लगा हुआ था। साहब ये अभी तक फटा क्यों नहीं साहब? पर साहब आप हमें एक मौका दे दो, हम अपने आप को चोर साबित चुप हो कर। जा और इधर बैठ। तुम चलो औरत, और ये लो पट्टी, बांधो अपनी आंखों पर। साहब खुद ही बांध ले क्या? हाँ बांधो। बहुत शौक है ना तुम्हें अदालत जाने का? साहब पर पट्टी बांधना जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप बांधोगे? खुद ही बांधो। बांध लिया। अब तो सब पता चल जाएगा। साहब फिर पर्दा क्यों है? हवा हालात में क्या हवाई जहाज में जाओगे? सब पर पट्टी बांधना क्यों है साहब? हवालात के भी कुछ नियम कानून होते हैं। अभी चलो। साहब कुछ दिखाई नहीं दे रहा साहब, साहब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साहब साहब आप कुछ बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं साहब? एक मिनट साहब, हम कुछ करके आपके एंटरटेनमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ साहब बड़ा प्रसिद्ध गाना है, तुम तो
अक्सर गाया करते हैं, आपको भी गा के सुनाते हैं साहब। चलो वो शक्ति हमें वो दया भी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, वो शक्ति हमें वो दया भी दे। साहब वो कर्तव्य मार्ग तो दिखाई नहीं दे रहा, ना कि हवालत। साहब आपको दिखता होगा हवालत साहब, जल्दी पहुंचाइए ना। हाँ साहब जल्दी पहुंचाए ना साहब। अरे साहब अगर हम ये गाली देना सीख जाए तो क्या हमारी भी भर्ती पुलिस में हो सकती है क्या? हाँ साहब, बड़ी बड़ी गालियां जबान पर चढ़ती है। हाँ साहब कोशिश बहुत की पर गाली देना कभी सीख ही नहीं पाया। लगता है खुद को ही गाली देता हूँ। पर सहना खूब जानते हैं साहब, आप कुछ चिंता मत कीजिए। अरे साहब गाली ना आपके मुंह से बड़ी अच्छी लगती है। साहब सिखा दो। साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? साहब लगता है मुंह में गए हैं। अरे इतने देर से काबी तो हकना उतना का। चुप बहुत करते हो तुम लोग। साहब सब ये सब तो रास्ता काटने के लिए है ना साहब। अरे हाँ साहब वो बहुत से ना रास्ता बड़ा जल्दी कट जाता है साहब। जी साहब एक बात बताइए, आप इस सर्दी में बाहर क्यों निकले हो? इस समय तो जानवर भी अपने घर में रहते हैं। अबे साहब आपको आपकी चिंता थी या हमारी? चुप कर, मेरा बाप है अदालत है कि मैं तुझे बयान दूं। मेरी ड्यूटी क्या है, और वो भी तुम चोर चप्पो को। अरे हमारी जवाब तो मेरा डंडा है, डंडा। साहब हवालत भी तो है ना। मेहरबानी कीजिए साहब, हम जैसे चोर चक्के बदमाश का संसार में गुंडा संसार के लिए हाथ निकाल रहे साहब। आप तो व्यवस्था के रक्षक हो, इसकी रक्षा कीजिए, हमें महाराज में दीजिए साहब प्लीज। हाँ साहब आपको तो पता ही है, आपको ये सरकार इतनी ही पीस रही है जितनी कि हमें। आप तो बहुत जिम्मेदार आदमी हो, आपको इसकी रक्षा करनी पड़ेगी साहब। हाँ साहब, अब चाहे तो जिस रोटी के लिए आप लड़ रहे हो, यदि उसी रोटी के लिए हम भी लड़े तो हमें डंडा मारे। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे क्या करना है वो मैं जानता हूँ, तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं मुझे। अभी पीढ़ी पिलाओ। साहब एक ही पीढ़ी थी हम तीनों के बीच में, वो भी आपने ले ली साहब। पीढ़ी है नहीं, और हवालात जाने की बात देखते हो? तुम्हारी बाप ने बनवाई क्या हवालात? सब बाप हमारे तो आजादी मिलते ही गुजर गए थे, आपके बाप ने बनाई होगी। अबे ये हुई ना बताएगी साहब, पहले लात फिर घूसा फिर गाली फिर हवालात। चलिए आपने सिलसिला तो शुरू कर दिया, अब तो ले चलिए हमें हवालात सर। हाँ साहब अब तो पट्टी खोल सकते हैं ना, हमें खुद देखना है साहब। नहीं ये पट्टी नहीं खोल सकता। क्यों साहब, रास्ते आपका घर पड़ता है क्या? अरे वो तो मैं पट्टी बंधे हुए भी देख सकता हूँ। एक छोटी सी कोठरी होगी, उस पर घर में बिस्तर रखा होगा, बीवी आपकी उस पर बैठी हुई होगी। साहब आपके घर में भी रोज चूल्हा नहीं जलता होगा ना साहब? साहब आपके घर में भी राशन कम होगा ना? आपकी बीवी भी आपका इंतजार करती होगी ना साहब कि आप आएंगे कुछ पैसा लेके चोरी करके ही। फिर वो अब चूल्हा जलाएगी, आपका भूखा बेटा भूख के मारे इधर उधर फिरता होगा, आपका बेटा प्यार के मारे अपने जीप को अपने ऑटो पर फिराता होगा। साहब हम जानते हैं कि आपके इस शानदार वर्दी के पीछे भी यही फटी हुई दागदार बनियान है साहब फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पास ये वर्दी है जो कि आपकी भी नहीं है, सरकार की दी गई हुई है। एक दिन ये भी ले ली जाएगी। साहब बाहर से तो आप बहुत सख्त दिखते हो, पर अंदर से टूटे हुए हो, लाचार हो। साहब अब तो पट्टी खोल लिया सर, आंखों में दर्द भी होने लगा है। साहब किधर हो सर? साहब अरे साहब, अरे चला गया क्या? अरे चला गया, ऐसे कैसे चला गया? अरे हवाला कौन लेके जाएगा? अरे तू मेरी पट्टी खोल पहले। अरे काल है हाँ। अरे मेरे भी तो कौन सालो, मेरे को लेके लिए प्रधानमंत्री आएगा? मुंह से क्यों बोल रहा है यार? हाथ से भी तो बोल सकता है ना। अरे साहब कहाँ गए साहब? अरे साहब अरे
ये भी हमें छोड़ के चला गया क्या? ये भी हमें घुमा रहा था क्या? जैसे आजादी के बाद से सब हमें घुमा रहे हैं। साहब उसकी तो परवाह कीजिए जिसकी मैंने हत्या की थी। और उसका भी जिसका मैंने जेब काटा था। साहब उस धमाके का भी जो होने वाला था। निरीक्षक कीजिए साहब, हमें हवाला दे दीजिए। कहाँ गए साहब? साहब आप कहाँ हो साहब? साहब आ गए। सही कहते हैं लोग, मैं और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुम भी टूटे हुए और मैं भी टूटा हुआ। अरे साहब साहब रात बढ़ती जा रही है साहब। साहब बर्फीली हवा भी चल रही है साहब। हमारे पैर में नहीं है साहब, हमारे पर कमीज भी नहीं है साहब, बहुत ठंड लग रही है साहब। हमारा ले चलिए ना प्लीज साहब, कुछ नहीं खाया साहब। साहब छोड़िए मत साहब। साहब सोचा था इस सर्दी में जेल में रहकर अपना दिन काट लूं। अब तो कपड़े भी नहीं है, इसका काम कौन सुधारेगा? पर वो हमें हमारा क्यों ही लेके जाएगा? उसे देने के लिए हमारे पास एक पैसा भी नहीं है ना। खराब हो गया
इस केस को होते हुए 10 साल बीत गए। अब जब बात गिल्टी या नॉट गिल्टी की आ गई तो इसे एक सही राह दिखाना बहुत जरूरी है। मैं और मेरे अगेंस्ट यहाँ जो भी है शर्मा जी, हम सब केवल एक डिफेंडेंट और एक प्रोसिक्यूटर का फर्ज था। लेकिन बाबा को डिफेंड करते करते डिफेंस काउंसिल कहां चूक वो चूके एक जघन्य अपराध को समझने, वो चूके इस बात को समझने में कि इस बाबा के कुकर्मों का पूरे संसार में क्या असर पड़े। मुझे बहुत शर्म आता है ये सोच के कि हमारे इस महान देश में हर एक लड़की अपने पूरे जीवन काल में एक ना एक बार शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित होती। इस बच्ची ने किसी को पीड़िता दिखाई दी तो किसी को पैसे बनाने का साधन, किसी को अपनी कुंठित वासना पूरा करने की ललक दिखाई दी तो किसी को दिया। पर मुझे इस बच्ची में एक रौद्र काली दिखाई थी, एक मां दुर्गा दिखाई थी, क्योंकि ये बच्ची आवाज उठाना जानती है, ये बच्ची लड़ना जानती है, ये बच्ची उन सब बच्चियों की आवाज है जो आपके वर्डिक्ट पे अपना आंख दौड़ाए बैठी है इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए ये केस धन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो लॉर्ड अगर धर्म ही सब कुछ है ना, मैं भी एक कहानी के साथ इसका समापन करना चाहूंगा। आप सब रामायण के बारे में तो जानते हैं, आप जानते हैं रामायण के अंत में प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी मिलोड। रावण जो कहता मुझसा योगी मुझसा योद्धा इस धरती में कोई ना दूजा है, इतनी शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, उसे शिव जी ने दर्शन नहीं। ये देख के पार्वती से चौंकते हुए शिव जी के पास पहुंची और पूछी, हे प्रभु आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? रावण जैसे अपने परम प्रेमी भक्त को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? उसे माफ क्यों नहीं कर रहे? शिवजी मन मुस्काए और कहा, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्मों को 3 भागों में बांटा गया। पहला कुकर्म जो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, जिसका माफी मांगकर या अन्य कुछ करके निवारण किया जा सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे हत्या, अपहरण और जघन्य अपराध। इनकी भी माफी किसी हद तक संभव है। परंतु तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई इतने में पार्वती जी ने अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता का अपहरण किया था, ये तो अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप इसे महापाप क्यों मान रहे हो? शिव जी मन मुस्काए और कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को तो माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने साधु का भेष धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है, योर ऑनर। और ये रावण है, रावण। इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है, उनका नाम इस्तेमाल कर एक जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम ऑफ डेथ पेनल्टी टू बी हैंग्ड टिल डेथ। आवाज that is all.
listeners to you. आखिरी साल है और मैं ये गाना मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही मर जा तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। हम ना रहे
है दोस्ती खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ तुझे भुला दिया तुझे भुला दिया तुझे भुला दिया फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया मुझे रुला दिया ऐसे तेरे रास्ता मुड़ा था तुझसे घूमता जुदा जैसे होने लगा मुझसे कुछ मेरा मुझे भुला दिया मुझे भुला मुझे भुला दिया फिर मुझे रुला दिया मुझे रुला दिया जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी कर लेते मजाक चल रहा है कोई निकल सर मेरे से जीसी कुछ नहीं हो पाएगा सर। जाओ जाओ नेक्स्ट आया सर आया। जीते रहो नाम बताओ अपना। नाम मेरा जीसी सर। जीसी ये कैसा नाम है? सर मेरी मम्मी ने जब मुझे पैदा किया था ना तो सिर्फ एक मकसद से किया था कि मैं जीसी का MVP बन सकूं, इसीलिए मेरा नाम जीसी है सर। अच्छा तो तेरी मम्मी ने तेरा नाम जनरल चैंपियनशिप रख दिया? नहीं सर, मेरा नाम गंगूराम चाट्टोपाध्याय है। छोड़ बाप का नाम बता। जीसी सर। अब क्या है जीसी? गोटालाल चाट्टोपाध्याय सर।
नहीं सर, जनरल चैंपियनशिप। क्या? छोड़ मेजरमेंट कहते तेरा हाइट सीधा खड़ा रे, पेट अंदर। चल सॉरी सर, सॉरी। सीधा। ठीक है क्वालिफाइड। ज्यादा कुछ मत हो, वेट की बारी। आजा। 100 ग्राम ओवरवेट डिस्क्वालीफाई। ऐसी बातें कर रहे हो सर, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते सर। तुझसे नहीं होगा, जा अगले को मैसेज इसको हटा। नहीं सर, मैं यहाँ से नहीं लूंगा सर, आ जाओ। ए तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रोटेस्ट में क्यों बैठ रहे हो? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? ये क्या है? सर मैं जीसी जीतूं, ये मेरी मम्मी का जीसी है सर। तेरी मम्मी का क्या है? गहरी चाहत है सर। पैच हो गया, धीरे कर दूंगा साहब, पैच हो। एक चांस और दे दो सर। अरे तुझे लगता है जीसी जीतना आसान है? तुझे पता नहीं है ये जीसी जीतने के लिए लोग कहाँ से आते हैं। ये जीसी जीतना आईटी केजीबी में सीढ़ी से लगने से भी ज्यादा मुश्किल है। मैं कर लूंगा सर। अबे चुप मूर्ख, तुझे पता भी है किस चीज की जीसी है? किस चीज की सर? तुम लोग को पता है किस चीज की जीसी है? ये है जीसी रॉक पेपर सीजर। सर मैं कर लूंगा सर, आप मुझे एक पैर दो सर, मुझे खुद पे बहुत जीसी है सर। क्या है तुझे कुछ पे? ग्रेट कॉन्फिडेंस है सर। यार एक चांस दे दो सर, कर दूंगा। अगर नहीं तुम चांस तो क्या होगा? तेरी मम्मी मर जाएगी क्या? नहीं सर, मेरी मम्मी चली जाएगी सर। कहाँ चली जाएगी? जीसी में सर। अब क्या है जीसी? घातक कोमा सर। प्लीज सर, एक सुन, अगर और जीसी किया तो मैं भी डीसी पे आ जाऊंगा। नहीं सर, ओनली जीसी सर, नो डीसी सर, प्लीज सर। होने रखते एक तो। चल खड़ा हो, उठ। चल मैं तुझे एक मौका देता हूँ, अगर तू वो कर दे जो मैं तुझे बोलूं। अबे ये कैसी बातें कर रहा है? मैं ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज नहीं है भाई। मैं क्या बोल रहा था, ये जीसी रॉक पेपर सीजर की है ना? तो अगर तू एक पत्थर फेंक के दिखा देता मुझको तो मैं तेरा सिलेक्शन नहीं देता। सर आपको एक बात बताना भूल गया। क्या? मैं जीसी से हूँ सर। कहाँ से हो? गुलमार्ग कैंप सर, कश्मीर। पत्थर फेंकना तो मेरे खून में है सर। पत्थर फेंक। सर किस पे? उस वाले पे, उस वाले पे। इधर आरपी पे फेंक। तेरे सामने पेपर पढ़ाओ, न्यूज़पेपर पढ़ाओ, लेकर नहीं असली वाला न्यूज़पेपर। इसको एक और टास्क दे रहा हूँ मैं, एक और टास्क। ये जो तेरा न्यूज़पेपर है इसको तू अगर जल्द से जल्द पढ़ के दिखा दे तो मैं तेरा सिलेक्शन ले लूंगा। रेडी है ना? जल्द से जल्द पढ़ना, एकदम स्टार्ट कर। बंगाल में फिर से हुआ 17 साल की महिला। अरे रुक क्या मराएगा भाई तू? तुझे पता ही नहीं हमारे देश में ऐसी चीजों में बातें नहीं की जाती। तू अभी आ गया? हाँ। अगला हेडलाइन पर और दोनों कहाँ पर है तेरे को पता है?
बाकी तो टेस्ट आपको सुनाई नहीं दिया बच्चों की एजीपी में हुआ 100% सीडीसी प्लेसमेंट। ठीक है, हैंडल कर ले। ठीक है, हाँ ठीक है। इसको दूसरा डांस देता हूँ। चलो दूसरा डांस। हाँ, सीजर सीजर सीजर। अगर तू 10 सेकेंड में मुझसे ज्यादा खाली कैची चला के दिखा दे, खाली कैची चला के दिखा दे तो मैं तेरा सिलेक्शन ले लूंगा। समझ गया? 10 सेकेंड दे रहे। रेडी स्टेडी गो। अबे आरपी वाला है क्या, इतना ही कर पाया? मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। मैं सेम टाइम में इससे डबल करके दिखा सकता हूँ। देखोगे? चलो काउंटडाउन करो, तुम लोग भी करो काउंटडाउन। जीसी क्या जीसी? कैसा जीसी? कौन सा जीसी सर? कैसा जीसी? छुट्टी का क्लास
में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के छोटे थोड़ा रंग बना के अंडा के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के all that chili friends don't miss that chance all that chili friends don't miss that chance First of all, I'd like to congratulate all the participants, especially second years, of Radha Krishnan Hall of Residence for making this Open Night a grand success. A big shout out to General Secretary, Social and Cultural, Vishu Gaur, and Coordinator, Social and Cultural, Preet Vadoria, for working for more than 2 weeks, often sleep deprived, to smoothly conduct this event. A big round of applause for the amazing audience for being with us on this beautiful evening. Last but not the least, एक प्यारी सी शायरी मेरे यार के वासियों के नाम पे। तो अर्ज किया है, हर जिंदगी प्यार की मोहताज नहीं होती। हर जिंदगी प्यार की मोहताज नहीं होती, हर इमारत ताज नहीं होती। जरा इश्क करो तो संभल के मेरे यारो, MTS NIG की हर पंक्ति मुमताज नहीं होती।